So guys, what was the last question, or is there any homework? You guys have any doubt in the homework? आप 16 क्वेश्चन का जो शीट था वो डिस्कस कर सकते हो। हाँ तो वो एक बार जरा मुझे, अच्छा तुम्हारे 3 ईयर एडमिन ग्रुप पे है ना वो? जी सर। एक मिनट, आई विल जस्ट ओपन दैट। Do you have more problems there? हाँ सर, ऑलमोस्ट एक भी नहीं हो रहा। Oh, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दूं? हाँ सर। ये वाला x belongs to 0 to pi by 2, थ्योरम तो पता है ना? fx to gx h of t dt is equal to y implies dy by dx is nothing but h of g of x into g dash x. Do you remember this? हाँ सर, लेबनीज रूल। Minus sorry, h of f of x into f dash x. Okay, so you want me to solve the first one, this one? If x belongs to 0 comma pi by 2, 0 comma pi by 2, and fx is equal to, this is a classroom example, you if you have revised the notes, 0 to sine square x sine inverse root t sine inverse root t dt plus 0 to cos square x cos inverse root t dt, and he wants us to prove this is equal to pi by 4. That's it, or this is the question? हाँ सर। Okay, we have chosen the first question as a, I don't say it's a good question, but yes, comparatively better question. Before that, there is one more question. Do you have doubt in that? G of something, G dash of something is needed. Part. नहीं सर। Part. नहीं सर। वो हो गया ना, उसका आंसर आया ना, G dash 9 निकला ना? हाँ सर। Okay, so just let me know if he says that, see, first of all, fx is this, means whatever x I write here from this place, where will I write x? Here, no? Here. And he says for every x what I write here, you integrate, put it back, right? Answer is always pi by 4. That means he wants to say one thing, that is that this is equal to constant. All right, and that constant is pi by 4 that you need to prove, isn't it? That means he wants us to prove that f dash x is equal to 0 first. Now what is f dash x? F dash x comes out to be sine inverse of mod sin x. Am I right? यस। Sine साइन inverse एक्स भी of, लिख सकते हैं, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, ओके, 0 से पाई बाय 2 है, साइन इनवर्स ऑफ sin x लिख सकते हैं। ओके, and then derivative of sin square x is sin 2x. Am I right? यस। Then I'm talking about doubts here. Then derivative of this, that is cos inverse of cos x. Okay, and derivative is minus sin 2x. Am I right? Minus नहीं आएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पे, sin inverse of sin x. साइन 2x। No, sin 2x. नेगेटिव साइन। Negative sin 2x. Don't you think it's cancelled? हाँ सर। This comes out to be 0. That means we have proven one thing, that fx is constant. Fx is constant means whatever value you put here and here, answer will always comes out to be constant. Now, what is the value of constant? You can put
x is equal to 0 to find that constant, because for every value of x this is constant. That means I can put x is equal to 0 also. For, I mean, 0 is not the correct value. 0 to 0 this will become 0, and 0 to 0 this will become 0. I mean, this doesn't really give you a good idea. When we integrate in closed interval 0 comma pi by 2, we generally take 0 plus to a plus a minus. So 0 we should not. We तो can जीरो take लेंगे pi. तो सेकंड वाला तो 0 से 1 हो जाएगा ना, नॉट 0 to हाँ, 0. सेकंड वाला 0 से 1 हो जाएगा, फिर वो इंटीग्रेट नहीं होएगा, लंबा चला जाएगा, राइट? बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली. Let us take x is equal to pi by 3. Then you will take one limit here, another limit here, integrating this. We will get pi by 4 after integration. That will take long time. But don't you think that if sine square x and cos square x becomes equal at some part of x, which I'll put from this place, then sine inverse root t plus cos inverse root t will be in one bracket? Yes. If I assume some value of x for which sine square x and cos square x are same, then my integration will become very easy. What do you say? Say something. कैसे सर? What I have said, have you heard what I have said? If some value of x makes sine square x and cos square x same means say k, then 0 to k, sine inverse root t plus cos inverse root t. What is that? Pi by 2. Pi by 2. That is done. Question done. That means what value of x we should put? Not this. Pi by 4. X is equal to pi by 4. Because in this case, this fx becomes what? 0 to 1 0 by to root half. 2. 1 by 2. Sine square pi by 4, na 1 by 2. 0 to half sine inverse root t. Can I pi write by it 2 dt directly? लिख दो ना. Cos inverse root t dt. That's it. It's done. Pi by 4 आ गया ना. अब pi by 2 भी क्यों लिखते हैं? Pi by 4 आ ही गया ना. That's it. It's constant and this value is pi by 4. That's it. Question khatam. Question number 1 and question number 2 are same. Do you want me to solve the second one also? It's the same question. नहीं सर, अभी हो जाएगा. ये fx is constant के बाद वापस समझा सकते हो. देख सुन मेरी बात सुन. पहली बार fx कांस्टेंट आ गया. अब कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाई 4 तुझे प्रूव करना है, तो x की कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे, जो आंसर आएगा वही आंसर हमेशा आएगा. ये इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही है ना. अरे बाबा fx कांस्टेंट, निकिता क्वेश्चन पूछो ना तो रिस्पॉन्सिव रहो. fx कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू तुम कुछ भी यहाँ डाल दो, राइट? इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, यही मतलब है ना इसका. हाँ सर. अब मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाई 4 प्रूव करनी है. दिस इज अ क्वेश्चन लेफ्ट नाउ, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज what value of x you will put here, what value of x you will put here, so that we can integrate it easily. I think if I can put some value of x which makes sine square x and cos square x equal, then sine inverse root t plus cos inverse root t will become what? 1. Yes. I have put in pi by 4. Okay sir. Pi by 4 here, pi by 4 here. Understood sir. That's it. अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि नहीं, if fx is given to you, I don't know, I mean, मुझे लगता है बहुत ही कम टाइम तुम लोग को आजकल सेल्फ स्टडी के लिए मिलता होगा. 0 to x ln 1 plus x square upon 1 plus x raised to power 4 dx. Then what would be f of 1 by 3? ये भी पता है कि नहीं कैसे निकलता है f of 1 by 3? सब जगह 1 by 3 डाल दें, यहाँ पे तीनों जगह में. पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट में 1 by 3 देंगे. हाँ, ऐसे ही करते हैं ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? f of 1 by 3 यही बना ना, लिमिट में किया हुआ है ना ये. 0 to 1 by 3 ln 1 plus x square upon 1 plus x4 dx. ऐसा ही होता है ना. 1 by 3 इधर ही डालते हैं ना, इधर तो नहीं डालते ना. What do you say? Yes. बराबर ना. तो टेल मी वन थिंग,
x equal to pi by 4 मतलब f of pi by 4 you are finding, f of pi by 4 you are finding, तो pi by 4 यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे ना, that's it, this is over, isn't it? Yes. All right, can I erase this one though is fine. What is the second question you want me to solve? Sir, can you please take question number 6A part? 6A part, okay. सर इस प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था कि हमने x इज इक्वल टू पाई बाय 3 क्यों लिया? नहीं पाई बाय 3 क्यों लिया नहीं है, पाई बाय 3 क्यों नहीं लिया अगर क्वेश्चन है तो करेक्ट क्वेश्चन है। पाई बाय 3 क्यों लिया ऐसा नहीं है, पाई बाय 3 भी ले सकते हैं, we can take any value of x. Okay. But the thing is, if you are taking pi by 3, what will happen? Just tell me. 0 to sine square pi by 3. What is sine square pi by 3? That is root 3 by 2. Root 3 by 2 means 3 by 4. Sine inverse root t. Plus cos square pi by 3. 1 by 4. Cos inverse root t. dt. Now, when you integrate it, it's definitely a constant. Okay. Now, what constant is that? You have to find out. इसको integrate करना is not that easy actually. Time consuming है, right? I'm not saying that you can't integrate it, okay? But I'm saying time consuming है, okay? Now what to do? You just ignore it. Find out some value of x for which the integral becomes easy integral, which I'm writing x equal to pi by 4, so that these two become same, and this becomes pi by 4. Got it, sir. Got it? Yes, Okay. sir. बराबर. So what's the next question we're talking about? तो थर्ड वाला. थर्ड पहले ले लेते हैं. Okay. Oh, question number 3. You're talking about the differentiation d upon dx of root x to x square. Are you d upon dx of हाँ सर. root x to x square, root x to x square? Guys, those who are not really having doubt in this, they should be solving level 1, 2, 3 either or booklet exercise. Any exercise you can choose randomly during the lecture and you can solve. Okay, but don't waste time. If you have done it and you have no troubles in this question, then you should go for that. Okay, till the time I'm taking doubts. So path d upon dx of root x to x square, root sine t and t minus x. But have you not gone through the notes I had given you in the theory of limits? Parth, you asked me this doubt. The reason I'm asking you. सर याद नहीं है. नहीं तुम उस थियरी में गए नहीं क्या अभी तक? एक बार भी पढ़ा नहीं क्या वो थियरी? बताओ. आई थिंक तभी पढ़ा होगा, याद नहीं अभी. नहीं अभी तो, लेकिन तुम्हें ये जो होमवर्क दिया, इस होमवर्क को तुम सॉल्व कैसे करोगे? जब उसकी थियरी पढ़ोगे तब सॉल्व करोगे ना. अगर तुम समझो कि हम लोग कितने अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें एक रैंक आ जाएगा, राइट? हम कितने अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि हमें पता है कि हमें लिमिट्स पढ़ाते टाइम में ये मेंशन किया गया था कि भाई ये चीज हम लोग डेफिनेट में वापस रिवाइज नहीं करेंगे, बराबर? इट्स अ टाइम किलिंग फैक्टर एक्चुअली. It is something like, you are making a fun with the teacher and making a fun with your life, with your career. I mean, the thing which has been taught once and you are not going through theory, and without that theory you are solving the problem, then most of the problems will be doubt.
with this problem I can analyze this because I have solved this problem during that lecture. Do you understand my point? And there are many sir. problems I have done. Guys, can you verify my point of view? Is there anyone present in the class? Yes, sir. Yes, sir. So can you verify, have you gone through the theory part? Or should I teach everything right from scratch? It's no issue, like, you know, it'll take 1 more month to finish the syllabus. What is the issue? Well, I did that part because of this, that I'm teaching in the best batch and they will be at par with everything every time. But I don't know what you guys are doing, how you are managing your timetable, how you come to the class. When you are coming to the class, don't you think that Bharat sir will be there and he'll be asking, अरे लिमिट्स में तुमने पढ़ाया था, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो उनको जवाब क्या देंगे? ऐसे शर्म भी नहीं आएगी हमें कि यार नहीं पढ़ा सर, बिना पढ़े हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे? या ये कहीं किसी जगह तो ये शक्ल देखी होगी ऐसे क्वेश्चंस की, लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल लगाते टाइम में कि सर ने पढ़ाया था एल हॉस्पिटल रूल और उस टाइम में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे कैसे, मतलब कैसे हम रोज भगवान की पूजा करें कि हे भगवान मुझे आईआईटी में कुछ 1000 में रैंक दे देना प्लीज, मैं थोड़ा कम तो पढ़ रहा हूँ मुझे पता है, बट थोड़ा सा तो ध्यान देना, थोड़ा तो पढ़ता हूँ मैं। इज समथिंग लाइक दैट वी आर डिवोटिंग 10-20 मिनट्स फॉर दैट। व्हाट आर यू डूइंग? When I'm intimating, when you guys are accepting this, that whatever you taught in limits, and why did I teach? Am I stupid? What I did taught in limits, I'm teaching once again. I could have done the same with your batch also. That these all questions will be solving in definite integral. Leave it at this moment. Is it something like that? Why don't you guys devote the time? I'm warning all the students. Remember, we are associating for 1 more month max. That's it, finished. Everything is over after that. I mean, if you want to, if you don't want to see my face, it's all okay. Don't come. Don't come in my batch. At this moment, finishing the syllabus, so I'm bound to see your faces. And no, I mean, it's not compulsory for me, but it's become compulsory for you at this moment. But this is shameful, actually. That the thing which I have done already done in the class and you guys have not done it. इससे बहुत बेटर क्वेश्चन मैंने क्लास में किए हैं, बहुत बेटर क्वेश्चन। मुझे तो याद आ रहा है शायद ये क्वेश्चन भी मैंने किया हो, मुझे याद नहीं है, मतलब इसलिए मैं इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करता। बाकी लिमिट्स में ये पढ़ा, कल होमवर्क दिया। श्रेया आर यू देयर? Asami. Yeah. Who asked me to send the 15 question sheet? Shreya, no? सर मैंने पूछा था। Acha, there was a message on the group actually. Yeah. So when you asked me to send these questions, I was not interested actually, because I knew this, that the students are busy in a number of things, right? So they must have not done it and they will not do it. They don't have time. So I didn't send, but you asked me, so I sent. And didn't we write the homework for these 15-16 questions I said? And isn't it a responsibility that you guys should solve this question? I mean, what I am saying, itni der mein main ye padha sakta hu, but this is not the good habit. Try to understand. अरे I'm not a joker यार, कि तुम्हारे बीच में आकर के मैं ड्रामा करूं और उठा करके और तुम लोग को अप्रिशिएट करूंगा, वाह वेरी गुड तुमने पढ़ाई नहीं किया, क्या हो गया, 2 महीने पहले पढ़ा हुआ याद नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? ऐसा नहीं कर सकता ना, डांटूंगा तो सही ना, एक चीज पढ़ाई है पता नहीं है, पता है ना इसमें क्या करते थे, यहाँ dx भी लिखा था एक बार मैंने, सेम क्वेश्चन में मैंने dx लिखा, फिर बताया कि क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में मैंने dt लिखा, फिर मैंने बताया क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम लोग मॉडिफाइड लेबनीज रूल से भी कर सकते हैं और सेम ही क्वेश्चन को हम लोग x को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। याद करो और बताओ मुझे, इसको हम लोगों ने ऐसे नहीं किया, इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, रूट एक्स टू एक्स स्क्वायर रूट साइन टी dt, root sin t dt, right, minus, this is over now. Now x is constant because we are integrating with respect to t, so the x is constant. I'll put it out. Yes. X root x to x square
root x to x square, and this is root sin t dt, root sin t dt. Now we can differentiate this. Differentiating this means this is y. Then what will be dy by dx? What will be dy by dx is t को x square से replace किया तो under root sin x square, under root sin x square into t को x square से replace किया into derivative of x square is 2x. मतलब कई बार मुझे बहुत शर्म आती है सच में. Am I meant for such questions कि मैं ये क्वेश्चन अब बताते रहूं बार बार. पहले बताया 2 महीने सेम बैच में, हर साल तो नए बैच में तो बताना पड़ता है, बट सेम बैच में एक क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हो. अब इसमें लेबनीज रूल लगाओ, चलो अपर लिमिट लिखते हैं बच्चों, चलो ये करते हैं, है ना, और फिर उसको सॉल्व कर रहा हूँ. दिस इज समथिंग लाइक दिस वी आर मेंट फॉर. अरे ऐसे हम IIT चले जाएंगे. अरे भाई यार मजा आ गया. बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाओ. हाँ, ये मेरी डांट तुम लोग को याद आ जाएगी बाद में, और बहुत दिन बन नहीं बचे हुए, 4-5 महीने ही है बस. इतने दिन में ही आप we relate each other when you are going to be successful student in IIT, right? If you are getting 10,000, 15,000 rank and you are nowhere, you are getting a good branch, you will not meet me. You will meet me only if you get good branch, right? So our association can be long only in case you get good branch. And whatever I am giving you, if you are not doing it, it implies a lot. I don't want to say that. दिमाग खराब कर दिया यार सुबह सुबह. ये पढ़ा नहीं उस पे मेरा दिमाग का, और कुछ नहीं. तुम मुझे मना कर सकते हो कि सर टाइम नहीं, हम लोग नहीं करेंगे. होगा फरवरी में तो हो ही जाएगा ना. जेई मेंस फरवरी में तो हो ही जाएगा ना. कोई ज्यादा टाइम कहाँ बचा है? अक्टूबर जा रहा है अभी, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 ही महीने तो बचे हुए. हाँ ये हो गया. अब क्या करूं? करूं क्या आगे इसको अब? नहीं सर. या हो जाएगा? हो जाएगा. पार्थ ने पूछा है. पार्थ तेरा प्रॉब्लम क्या है? तूने पढ़ा नहीं, ये इस पे गुस्सा है मुझे, इसकी वजह से सबको डांट पड़ रही है. और क्यों नहीं पढ़ा? मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन. मैं बहुत देर से डांट रहा हूं, पूछ नहीं रहा, क्यों नहीं पढ़ा? समय मतलब एक्चुअली तुझे भूल तुझे गया मैं कि वो इडियट उधर तुझे का मैं बात इडियट है. नजर आता हूँ कि मैंने बोला है ये पढ़ के और इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना, तो बगैर पढ़े ट्राई करेंगे तो कैसे हो जाएगा? बताओ. अरे वो बात, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट भी है उसको भी मैं अगर पटा के रखूं, पटा के रखना मेरा काम थोड़ी है. मेरा काम रिजल्ट देना है यार. आई डोंट वांट टू बी विद द स्टूडेंट हु इज नॉट एट ऑल इन अ गुड टाइम टेबल. Your rank is good. I was very happy that he is in the channel. Whenever you did good, I always appreciated you. क्या तूने अच्छा किया. माइट भी तेरा एक दिन का टाइम टेबल अच्छा नहीं हो कल का, कि तूने कुछ भी नहीं पढ़ा लिमिट्स में उठा करके और सीधा उठा के क्लास में बैठ गया. That's it. It might be a chance, but उसकी डांट पड़ रही है आज. अप्रिशिएशन भी मैं करता हूँ ना क्लास में, कभी कभी बोलता हूँ सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता है क्या. It's a blunder actually. I don't know what to say. Now differentiate. I thought of solving the good question in the class and I'm doing something like, जैसे मैं जेई मेन से मुझे शायद सीईटी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, ऐसे बच्चों के बीच में मैं बैठा हूँ. I'm not talking about everyone, but I'm feeling shame that यार कैसे बच्चों के बीच में मैंने एक चीज कराया, उस चीज को कोई पढ़ के आया नहीं, वो तो अलग बात है. चलो याद बिल्कुल भी याद नहीं है तो फिर बताओ 3 महीने बाद एग्जाम होगा तो पहले दिन पढ़ी हुई चीज कैसे याद रहेगी? तो मर गए ना हम, तो रिजल्ट डूब गया ना. अरे तुम्हारा रिजल्ट डूबेगा वो तो तुम इंडिविजुअली बियर करोगे, बैठे रहोगे कोने में, अरे यार मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो अंदर से तो सोच ही रहोगे मैंने पढ़ाई भी तो नहीं की यार, इसलिए रिजल्ट नहीं आया. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, नॉट पार्थ, राइट? बट मेरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी खराब हो रहा है ना ये सब चीजों से. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. उस पर आपका चैनल ठीक नहीं जा रहा. आई डोंट नो क्यों नहीं जा रहा है, किसका नहीं जा रहा मुझे ये भी पता नहीं है, क्योंकि ये जूम पे कुछ पता लगता नहीं है, वरना पूरी क्लास को 1-to-1 पूछ सकता था मैं भी. Shana, can I erase this? Yes, if you've sir. taken the picture. Okay. Guys, whatever I have said, it doesn't imply, once again I'm telling you, डाटा खत्म हो गया बात. डाउट है तो पूछ लो. अब मैं कंटिन्यूस सॉल्व कर दूंगा सारे डाउट्स, 1 by 1 सारे A to Z चाहिए तो सारे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन डाउट छोड़ मत देना. गुस्सा आता है तो कोई टीचर डांट ही देता है, वो अपने स्टूडेंट्स को ही डांटता है, तो उसमें बुरा क्या मानने का है. हाँ, किसी ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, लेकिन पार्थ तेरा इससे अलावा कोई डाउट है क्या बेटा?
नहीं अब सर पार्थ 60 है पार्थ नहीं। बोलेगा सही, अब तो एक भी नहीं पूछूंगा। 60 है क्या पक्का? हाँ, सोच ले, ऐसे गड़बड़ मत करना। डांट दिया इसका मतलब ये नहीं डाउट नहीं पूछेगा। नहीं सर एक बार पढ़ूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। हाँ मतलब ऐसा मत करना, छोड़ देना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्चुअली। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बगैर पढ़े डाउट पूछना गलत है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट पूछना है? A part. 6 का ये पार्ट, 6 का ये पार्ट पता है? 6 क्वेश्चन में जो है ना, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ नहीं यार, नीचे नहीं दिया हुआ, सॉरी। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बताया दिखने में गंदा और लंबा क्वेश्चन है। हाफ x माइनस टी होल स्क्वायर 0 to x है, हाँ 0 to x जी टी डी टी, जी ऑफ टी डी टी, और काउंट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है f ट्रिपल डैश 1 माइनस f डबल डैश 1। तुम्हें ये चीजें दी हुई है, ये हर स्टेप में तुम्हें ध्यान रखनी है। g ऑफ 1 5 दिया हुआ है, और 0 to 1 g ऑफ t dt 2 दिया हुआ है। ओके ओके, सो f डबल डैश 1 या f डैश 1 निकालने से पहले इसको तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा। सो व्हाट डू यू गेट? f ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt into g of t dt. Now just split it. f of x is equal to half of, ये 2f of x कर दो यार, ये हाफ बार बार कौन लिखता रहेगा। एक्स स्क्वायर के साथ इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। 0 to x and what do you get here? X square g of t dt. So g of t dt plus 0 to x t square g of t dt minus 2x is out, t g of t dt, and this is 0 to x. Now we'll find f dash x, 2f dash x. It goes lengthy, no doubt about it. इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी पूछता ही है, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है जिसमें इरिटेटिंग थोड़ा सा तुम लोग को लगे, थोड़ा लेंथ पकड़ रहा है, बट ये लेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। मतलब इस स्टेप में लेंथ लगेगी, सेकंड स्टेप बहुत इजी हो जाएगा, थर्ड स्टेप आंसर आ जाएगा। जस्ट लुक एट दिस। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस दिस x इज नॉट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ fx। ये भी वेरिएबल है, और गाइस ध्यान तो ये भी वेरिएबल है। अगर g ऑफ t कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रेट होएगा तो अपर लिमिट डालते ही x की टर्म्स में कोई फंक्शन आ जाएगा ना। Then you have two functions, function 1 and function 2. So product formula is needed. X square as it is, derivative of this, t को x से replace किया, g of x, x का डेरिवेटिव 1, t को 0 से replace किया तो सब गायब, प्लस ये फर्स्ट ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रल 0 to x g of t dt as it is, g of t dt as it is, derivative of x square, that is 2x, Sir? हाँ बोलो। तो सर भाई यही करके एंड में x को 1 डाल देंगे ऐसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डालेंगे, हाँ मतलब इसको करेंगे अभी, रुको स्टार्ट किया ना, रुको। देयर इज समथिंग व्हिच इज गुड इन दिस क्वेश्चन, आई विल हाईलाइट दैट। प्लस नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, सो व्हाट डू यू गेट? x स्क्वायर g ऑफ x, नथिंग एल्स। आई मीन t को x से रिप्लेस किया और x का डेरिवेटिव, फिनिश। दिस इज ओवर। नाउ 0 डालना इज ऑल फाइनल। minus 2 times x as it is, derivative of this x g of t, x g of x means x g of x, right, into x का डेरिवेटिव 1, 0 डालेंगे तो खत्म, मतलब ये minus 2x as it is, इसका डेरिवेटिव। now minus 2 times 0 to x t g of t as it is, dt, and derivative of x is 1. That's it, finished. Now guys, प्लस क्या लास्ट हुआ? में प्लस होगा, वो प्लस होगा सर लास्ट में, एक मिनट, लास्ट में। नहीं लास्ट में प्लस क्यों होगा? माइनस ही होगा ना। माइनस, अरे नहीं, बेसिकली कर क्या रहा हूं, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो ना,
माइनस Okay, टू एक्स एज इट इज, पहला इसका डेरिवेटिव, माइनस 2 टाइम्स ये इंटीग्रल एज इट इज, और फिर एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस ही आएगा ना, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बराबर है हाँ ना? सर, yes sir. हम लोग ने लेबनीज तो सिर्फ इस पे लगाया है, इस पे लगाया है, वो हम लोग यहाँ लगा चुके हैं डेरिवेटिव पे एक्चुअली. ओके, नाउ लुक एट दिस स्टेप, x स्क्वायर gx, x स्क्वायर gx, x स्क्वायर gx and 2x स्क्वायर gx, दिस इज ओवर, 3 टर्म्स ओवर. पता है यही है, ये छोटा होता चला जाएगा. अभी 2 टाइम्स टू भी कैंसिल, आई गेस आफ्टर दिस 2 आल्सो कैंसिल, ये तीनों कैंसिल हो गए, तो 2 यहाँ पे गया और 2 यहाँ पे गया, ये भी ओवर. अब बच्चों एक टर्म ये बच रही है, ध्यान दो, एक टर्म ये बच रही है, ये वाली टर्म बच रही है, और एक टर्म ये वाली बच रही है, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट? और इसको डिफरेंशिएट करने में कहीं प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, यस यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला फिर लगेगा, देखो अभी तो 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 कट किया 2 तो ना. गया, 2 तो गया, आई एम सॉरी, हाँ 2 तो गया. एफ डैश, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स, टी को एक्स से रिप्लेस किया, एक्स का डेरिवेटिव, प्लस जी ऑफ टी 0 टू एक्स, 0 टू एक्स, जी ऑफ टी डी टी एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स is nothing but 1, right? This is over, now this is over, there is no product formula here, only single variable. So what तो will be g this? of 0 आपने 0 कैसे लिया? g of 0 0 नहीं लिया मैंने g of 0 लिया, फिर 0 का डेरिवेटिव 0 लिया. हाँ राइट. Now this x gx over, only this part is left. What is f triple dash x? What is f triple dash x? 0 to x g of, what is this? That is g of x. Now what is f triple dash 1? F triple dash 1 g of 1 given to you 5. What exactly you want? F double dash 1. What is f double dash 1? F double dash 1 is this, only this term. So what is f double dash 1? If you put x is equal to 1 here, then you will put x is equal to 1 here. That is 0 to 1 g of t dt. So what do you get? This is given to you what? 2. That's it. We have got the answer. 6th day is over. 3 is the answer. Okay. What next, guys? Any other So- doubt? Yeah, So please in go the ahead. so in the 9th question, I'm getting 0 as answer. Like 3-4 बार attempt किया, I'm getting 0 every time. Is there anyone else having doubt before 9th? Okay, I'll go for 9th. In 9th, you are getting, surprisingly, this question we have done in class actually. But I will not proceed the same as I have done 5 minutes before. I will solve this question immediately. I don't know about the answer. Answer given to you -1, and you are getting something different. Am I right? Yes sir. Question number 9. Okay. Limit extending to 0. Extending to 0. 0 to x, x e to the power x square dt है. This is t square. मैंने वही कहा dt लिखा हुआ है तो क्या पागल बना रहा है ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर. देखो गाइस एक चीज ध्यान दो तुम लोग, ये जो एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, वो किसके लिए बना हुआ है? इसके लिए बना हुआ है. ये dt लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट इसके लिए बना हुआ है. बस इंटीग्रेशन सिर्फ ये वाला है, ये दिस वन इज फॉर इंटीग्रेशन. ये x जो है ना, ये कांस्टेंट ही है, इसके रिस्पेक्ट में ये x कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाहर आएगा, मतलब इसको यहीं पे बाहर निकाल देते हैं, ये x हो गया. ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है ना. एक्सटेंडिंग टू 0 जब डालोगे तो ये 0 आएगा, और 0 टू 0 तो 0 बन जाएगा वैसे भी. तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है, टेंड्स टू 0, और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, टेंड्स टू 0. टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 वी कैन डिफरेंशिएट. बट गाइस टेल मी वन थिंग, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इससे पहले एक बार यहाँ इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, वुड इट बी बेटर? एंड कैन Yes. यू टेल मी व्हाई इट्स अ बेटर स्टेप? So वो standard limit e raised to power f. And what is the value of this? This is -1, no? Yes sir. This is -1. This when I cancel, I'll get x in the denominator.
And what finally I get actually, limit extending to 0, 0 to x e raised to power t square dt whole divided by x with negative sign. Am I right? Is there any issue in this step? यहाँ से हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा. हो जाएगा ना? हाँ, आंसर sir. इज -1 ओनली. आंसर हाँ, इज हाँ. करेक्ट. मुझे दिख गया आंसर -1 ही आने वाला है, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस साइन के साथ आंसर देने वाला है. दैट इज व्हाट. क्वेश्चन नंबर 9 डन. अरे शाइना यार, तूने वो लिया था नहीं लिया था अगले वाले पेज का? हाँ वो सर ले लिया था. सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क यू. क्या गाइस, गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद सर 13 क्वेश्चन नंबर 13 हाँ 13 11. 11. Question number 11. Wait a minute, guys. Question number 11. Pacho, this is a very good question. This is a very good question. Why it's a good question? Why I'm telling you it's a good question? Directly, if you are differentiating, फंस जाओगे. कुछ smartly करना पड़ेगा. Question number 11. Oh, 11 में. Question number 11. fx is a differentiable function. fx given to you. 0 to x. 0 to x e raised to power t sine of x minus t dt, right? And he's asking gx is equal to f double dash x minus fx. Find the range of gx. मतलब पहले तो gx पता लगाएंगे तो रेंज पता लगी जाएगी. एफ डबल डैश एक्स पता लगा लो यहाँ से. एफ एक्स तो दिया हुआ है, वो लिख ही दोगे यहाँ पे, तो जो फंक्शन आएगा उसका रेंज निकालना है. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको जब ये सॉल्व करोगे तो कुछ अच्छा सा फंक्शन आ जाएगा. इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना तो डिफिकल्ट सा लग रहा है. गाइस पता है इसको डिफरेंशिएट करना कितना डिफिकल्ट लग रहा है? तुम्हें आइडिया है? इसको sin x cos t minus cos x sin t पहले ओपन करेंगे, फिर वो x वाली टर्म्स को बाहर निकालेंगे. द प्रोसेस विल गो लाइक दिस, isn't it? मॉडिफाइड लेबनीज रूल यूज कर सकते हाँ, यस. निकिता एकदम, निकिता तुमने जवाब दिया नहीं है. हैं. नहीं मिताली एकदम करेक्ट जवाब दे रही है. वो बोल रही है कि इसमें मॉडिफाइड लेबनीज रूल लगाओ. पता है ना बच्चों, अगर ये dt है तो मॉडिफाइड लेबनीज रूल क्या बोलता है? इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? एक्स के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बराबर. ओके, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, मतलब फिर सेकंड डेरिवेटिव वही मॉडिफाइड लेबनीज रूल फिर लग जाएगा. कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा. एक तो वो आ गया. अच्छा, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, why don't we apply king over here? Use king. तो what fx do we get? आ जाएगा, जो मिताली बोल रही है ना उससे आ जाएगा. गाइज, I solved this question using modified Leibniz rule. उससे आ जाता है आंसर, राइट? तुम लोग ट्राई कर लेना. बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ इसमें. अगर मैं किंग लगाऊं, किंग का मतलब x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों में? माइनस एक्स है ना, a प्लस बी माइनस एक्स है. नहीं, x को T को रिप्लेस करेंगे ना. t को रिप्लेस कर रहे हो a प्लस बी माइनस एक्स से, यानी ये क्या बन जाएगा? e रेज़ टू पावर माइनस एक्स बन जाएगा ना. t को किससे रिप्लेस करोगे? X minus T. ये क्या बनेगा? t माइनस एक्स बनेगा, x माइनस टी बनेगा. X minus T. Alright. fx is equal to 0 to x. This is x minus t. e raised to power x minus t, in fact. Isn't it? And ये क्या बन जाएगा? Sin T. Sin t. And dt. Guys, अब ये स्प्लिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? e raised to power x is out. fx, what do you get? fx is e raised to power x is out. e raised to power minus t sin t dt. अब तो ये इंटीग्रेट होने लायक ही बन गया मेरे हिसाब से. ये इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता भी है एक्चुअली, तुम्हें याद हो तो. 0 to x. अब गाइस इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा मस्त रिजल्ट आ जाएगा. What is f dash x? What is f dash x? f dash x is coming out to be e to the power x as it is, e to the power x as it is. Derivative of this, guys, can you tell me what is the derivative of this? t को x से रिप्लेस किया, x का डेरिवेटिव 1, क्या आएगा? e raised to power minus x sin t and x का डेरिवेटिव 1.
फिर टी को 0 से रिप्लेस किया, 0 का डेरिवेटिव गायब। ये तो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट फॉर्मूले में e raised to power x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव नाउ प्लस 0 to x e raised to power minus t sin t as it is, sin t as it is, derivative of x, derivative of e to the power x is nothing but e to the power x। इसको पहले इधर ही लिख देते हैं using product rule। सर ओके बोलो। फर्स्ट टर्म में sin x नहीं आएगा? Oh, I'm sorry. Guys, this is over. Now, what is f double dash x? What is f double dash x? Sin x plus cos oh, x. cos x, cos x, cos x plus again the product formula. Again the product formula on this. Guys, tell me one thing. E raised to power x minus t. Can I write it f? इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला मतलब ये तो fx ही हो गया ना गाइस, ये तो fx ही है ना वापस। क्या बोलते हो? Yes. बराबर ना? हाँ सर। इसका डेरिवेटिव f डैश x आ गया, जिसको मैं वापस ये लिख दूं sin x प्लस e टू द पावर x इनटू 0 to x e टू द पावर माइनस t sin t dt। या फिर एक काम करते हैं, इतना झंझट मारी करते ही नहीं है, इसी स्टेप को f डैश x को एक बार वापस लिखते हैं। f डैश x is nothing but sin x plus fx। Can we write it like this, guys? Yes sir। What is f double dash x? Cos x plus f dash x। What is f dash x? cos x। Cos x plus what is f dash x? Sin x plus fx। And what exactly do you want, guys? F double dash x minus fx। gx वही तो हुआ। So what is f double dash x minus fx? It's nothing but cos x plus sin x। Guys, have you got the range of this? You want me Yes, to find the range? Yes sir। Its range is minus root 2 to root 2. Finish. That's it. Over. Is it okay? Yes sir. All right. Question number 11 was a good question in the sense that I wanted a different method here, right? Otherwise, you can solve it using Leibniz rule also, as Mitali said. Okay. So going for next, guys, what was the next question you were asked? sir, 13. Question number 13. Okay. Limit extending to infinity. Shaina? Done। Done. Limit extending to 13. Sorry, question number 13. Limit extending to infinity. X into 0 to x e raised to power t square minus x square dt। ये ब्रैकेट लगा के ना जो आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है ना, वैसा है नहीं क्वेश्चन एक्चुअली। dt गाइस, सब लोग ध्यान दो। हाँ, ये e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 to x e to the power t square dt। ये बनेगा ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। सबसे पहले तो ये समझो ये बन क्या रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहां से बन रहा है? भाई e टू दी पावर t स्क्वायर का ग्राफ जो भी कुछ बनेगा वो ऐसा कुछ ही बनेगा ना, ऐसा कुछ ही बनेगा ना। हाँ सर। ऐसा ही कुछ बनेगा ना, बराबर ना? इवन फंक्शन है ना, तो राइट साइड वाला ही लेफ्ट साइड में बन जाएगा। ओके। अब बताओ इसको 0 टू x वाला x अगर इंफिनिटी हो गया तो 0 टू इंफिनिटी में ये अगर इंटीग्रेट करना होगा तो ये एरिया तो इंफिनिटी आने ही वाला है ना। हाँ सर। इसको तो इंफिनिटी बनना ही बनना है, तो ये तो इंफिनिटी आ गया। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी इंफिनिटी बनेगा ना डिनोमिनेटर। नहीं नहीं, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी तो 0 बनेगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा ना।
हाँ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, दैट इज बट इसमें चक्कर है, एक बात समझ, इसमें चक्कर क्या है पता है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डालेगा ना तो ये तो बन जाएगा इंफिनिटी, और ये बन जाएगा क्या 0, और ये बन जाएगा क्या इंफिनिटी, तीसरी टर्म इंफिनिटी। अब बस यूं देख सकता है कि ये इंफिनिटी और इंफिनिटी मिलके जो है इंफिनिटी बना रहा है, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, ऐसे देख सकते हैं इसको हम लोग चाहे तो। बराबर क्या, बात समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ, लेकिन पता है इसमें मुझे लगता है आप लोगों को इसकी हैंडलिंग इस तरह से करनी चाहिए। ये 0 to x ले लिया, e to the power t square dt, e to the power x square को ले जाओ नीचे, राइट, और ये x ले जाओ यहाँ पे। बताओ बच्चों सही हो गया कि नहीं हो गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। बच्चों ये किया हुआ है हमारा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए, नीचे ये एक्सपोनेंट, ऊपर एक्सपोनेंशियल है और नीचे पॉलिनोमियल है। जब डिफरेंशिएट करते चले जाओगे बच्चों इसको, राइट, तो डिनोमिनेटर का पावर तो रिड्यूस होता चला जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में पावर आता चला जाएगा ना, e टू द पावर x स्क्वायर तो सस्टेन करेगा ना। अरे बाबा जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर सस्टेन करेगा। ये इंफिनिटी होता है कि नहीं होता है? कई बार कर लिया हम लोगों ने इसको। हाँ सर। तो ये अभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो लेबनीज रूल लगा दो इसमें, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो न्यूमरेटर कितना बन गया e टू द पावर x स्क्वायर, दैट्स इट नथिंग एल्स। डिनोमिनेटर क्या बन गया? डिवीजन रूल, x एज इट इज e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर इनटू 2x माइनस e टू द पावर x स्क्वायर एज इट इज इनटू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? x स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट डू वी गेट? पहले e इसको to the x square कट जाएगा। e टू द पावर x स्क्वायर कट गया, फिर तो ये क्वेश्चन ही गनचक्कर हो गया, मतलब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। x भी कट गया, ऊपर जाएगा तो x बचेगा नहीं, x कैसे कटेगा? x स्क्वायर बचेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, अभी हो गया एंड ना। लिमिट इज x is tending towards what? इंफिनिटी। आगे 1 क्या by आंसर? 1/2, राइट। ये तो सिर्फ चक्कर सिर्फ नहीं पढ़ने का ही है, पढ़ के आते ना तो मस्त मजा आता था, 5 मिनट में डाउट सेशन खत्म हो जाता था, राइट। माइट भी पार्ट हो जाता डांट पड़ गई आज पर क्या चलता ऐसा है, कुछ नहीं कभी कभी डांट देता हूँ तो बुरा मत मान लिया करो, ठीक है। हाँ गाइस, और कोई डाउट भी है क्या इसमें? 16 क्वेश्चन थे ना, 13 तो है ना अभी। हाँ 3 क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है तो किसी को? 15। 15 ओके, इधर है जगह, इधर कर लेते हैं 15। तो ये क्वेश्चन जो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x, मतलब ये तो इंफिनिटी बन रहा है, तो गारंटी हो गया। और फिर अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखना है, 0 to x 1 minus 10 to t raised to power 1/t, raised to power 1/t है ना, dt ये दिया हुआ है बच्चों इसमें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो 0 to 0 में ये तो 0 बन जाए, मानते हो कि नहीं मानते हो? 0 to 0 बन गया ना ये लिमिट, और इस x को जो है ना बच्चों यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। बताओ ये 0/0 फॉर्म बना कि नहीं बना? यस सर। तो डेफिनेटली एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो t को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 minus 10 to x raised to power 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ x is 1, x को t से रिप्लेस किया, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 raised to infinity। 1 raised to power infinity फॉर्म। क्वेश्चन सॉल्व आई गेस, e raised to power हो जाएगा सर इसका। हो गया ना। आंसर क्या लिखा हुआ है? e raised to power -2। बस, तो मैं ऐसे लिख दिया होगा, चिपका दिया, दिख रहा है वैसे। 10 2x by 2x करेंगे ना तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड शायद करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 डन। एनी अदर डाउट गाइस? Question number 16. fx be a continuous function such that fx greater than 0. ये मस्त है, मतलब fx greater than 0 दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा ना, for all x greater than equal to 0, डिवाइड करने में दिक्कत शायद नहीं आएगी, इसलिए शायद दिया होगा। fx raised to power 101, कुछ कट रहा है क्या यार इसमें? नहीं,
है ना, हो गए। शना ये हो गया क्या? हाँ सर। fx raised to power 101 is equal to 1 plus 0 to x f of t dt, है ना। he is asking value of f of 101 raised to power 100, f of 101 raised to power 100। क्या इंस्पिरेशन हो सकती है इस क्वेश्चन में हम लोग के लिए? इंस्पिरेशन ये हो सकती है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ये चाहिए और ये इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। तो व्हाट डू यू गेट? 101 fx raised to power 100 into f dash x बराबर है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव fx। fx ग्रेटर देन 0, आप समझ में आया क्यों दिया हुआ है? fx ग्रेटर देन 0 दैट मींस ये बन जाएगा fx raised to power 99, am I right? 101 fx raised to power 99 into f dash x is equal to 1. All right, let's tell me one thing. मतलब इस क्वेश्चन ने अपने को कितना उल्लू बनाया, ये ध्यान दो। हाँ, इसने पहले क्या किया? पहले डिफरेंशिएट कराया, ध्यान देना सब लोग। हाँ, पहले डिफरेंशिएट करवाया, फिर सिंप्लीफाई कराया। सिंप्लीफाई कराने का मतलब सिर्फ fx को कैंसिल करवाया। इतना सिंप्लीफिकेशन मोर देन सफिशिएंट था यहाँ पे। ज्यादातर अच्छे प्रॉब्लम्स में वो थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करवाता है। पहले डिफरेंशिएट किया, फिर सिंप्लीफाई किया, अब वापस इंटीग्रेट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन पता है ना, ये t लेंगे तो ये dt में चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 101 t raised to power 100 by 100, am I right? fx raised to power 100 by 100, all right। 101 ये आ गया इज इक्वल टू x plus c, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। fx raised to power 100 by 100, 101 यहाँ पे x plus c। c कैसे निकालोगे बच्चों यहाँ पे? Tell me one value of x for which f of something I know. Let's put x equal to 0. f of 0 raised to power 101 कितना आएगा? 1 आएगा ना। f of 0 raised to power 101 is equal to 1, is equal to 1, that's it। तो फिर c का वैल्यू कितना आ जाएगा? x को 1 डाल दो यहाँ पे, f of 0 1 ही आ गया ना गाइस यहाँ पे, बराबर है ना? हाँ सर। तो x को 0 डाला तो ये 1 आ गया, तो 101 by 100 राइट इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c। तो बच्चों c का वैल्यू कितना आ गया? c इज इक्वल टू 101 by 100 minus 1 which is coming out to 1 by 100, that's it। ये c यहाँ पे डाल दो, तो बच्चों क्या आ गया? रिजल्ट क्या आ गया बताओ? 101 by 100 f of x raised to power 100 is equal to x plus c का वैल्यू, c का वैल्यू 1 by 100, 1 by 100। अच्छा अब चाहिए क्या? f of 101, f of 101, तो 101 by 100 f of 101 raised to power 100 is equal to x की जगह 101 डालना, यही है ना? 101 plus 1 by 100। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं This is what we are getting। सर कांस्टेंट निकालने में गड़बड़ हो गई। f of 0 1 आया ना? सर आपने RHS में 0 की जगह 1 डाल दिया। नहीं, मैंने x की जगह 0 यहाँ डाला जी। सर कांस्टेंट 101 by 100 आ रहा है, वो x के जगह आपने 1 डाल दिया, 0। हाँ
सर नीचे वाले x स्टेप plus में c में x को भी Second 0 last डालना है. अरे हाँ शिट, यहाँ पे कांस्टेंट x इक्वल टू 0 डालना है, c निकालने के लिए 0 डालना है, तो ये 0 हो जाएगा, राइट? तो c कितना आएगा? 101/100. c 101/100 आएगा, 101/100 आएगा, राइट? बाय 100 आएगा। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, 1 ही बच गया राइट हैंड साइड में, बराबर ना? 1/100 इनफैक्ट, है ना गाइस? 100 एलसीएम लिया, फिर कुछ गड़बड़ सर किया। एडिशन. सर आपने x को रिप्लेस कर दिया c की जगह. x प्लस 101/100 और यहाँ पे ये तो स्टेप ही पागल है। अभी ठीक है ये स्टेप, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे बच्चों? 101 अरे यार फिर वापस वही आ गए हम तो, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ एक्चुअली। तो जो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू ये तो करेक्ट है, c निकालने के लिए x को 0 डाला तो c आ गया तुम्हारे पास 101 ये। अब तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, मतलब इसको छोड़ ही देते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही आएगा। फिर भी क्योंकि फंसे एक बार तो निकलना जरूरी है, fx raised to power 100 इज इक्वल टू x की जगह मैंने डाल दिया कितना कितना चाहिए 101, x की जगह 101 प्लस c का वैल्यू कितना आया था 101/100। यार ये वही वैसा ही कैसे आ गया? क्या चक्कर क्या है, क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? 101 कट जाएगा ना दोनों साइड में। अरे हाँ यार ये कट रहा है ना, 101 कॉमन ले लो ना बाहर, तो आएगा 1 + 1/100, ये कैंसिल हो गया है ना, एलसीएम ले लो, तो आंसर आ गया f of 101 raised to power 100। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन में कैसे फंसता है इंसान, और ये बच गया 101/100, 1/100 यहाँ भी बचा हुआ, ये भी कट गया। आंसर क्या आ रहा है बच्चों इसका? कितना लंबा गया है, 101 कट गया। नहीं कटा, वो कट गया, अरे कट गया था, लेकिन अब वापस आया ना यहाँ से, हाँ हाँ ये आंसर आ रहा होगा इसका, क्या देखो जरा एक बार वेरीफाई करो, यही है सर. है ना? कितना सी निकाल के कहाँ झंझट कर रहे थे इसका। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों ने लंबा खींच दिया है इसको, मतलब हम लोगों ने नहीं, मैंने लंबा खींच दिया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली, सीधा सीधा डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट। मतलब ये बहुत बढ़िया स्टेप है इंटीग्रल कैलकुलस की, ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। देखो ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं उसको, डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट। बताओ वापस सेम क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस? हाँ सर। लेकिन बच्चों इसमें जो बीच वाली टर्म है ना, ये बीच वाली टर्म, ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। इधर से इधर जाना, क्वेश्चन 1 वैरायटी 1 बोल देना चाहिए, और बच्चों इधर से इधर जाना, क्वेश्चन वैरायटी 2। मतलब पहले इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो और डिफरेंशिएट करो, वैरायटी 2। मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। एक क्वेश्चन देता हूं चलो तुम लोग को, ये वाला एक हटाना, पहले कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर इसी पे एक क्वेश्चन लेता हूं बाद में। शहना? हाँ हो गया। ऑलराइट, सर लास्ट में एक डाउट था हाँ बोलना। सर, वो जो आपने a से b इंटीग्रल किया ना dy/dx of f of x dx, हाँ हाँ, तो जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे तो हमने अल्फा पे तोड़ दिया था उसको और दो पार्ट में किया, सो वैसा क्यों किया? जब डिसकंटिन्यूअस होएगा तो वैसा क्यों किया? हाँ ओके, मतलब मान लो ये एरिया निकालना है, तो जैसे कि हमें tan x को करना है। मान लो ये यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है ये, राइट? तो क्या इस पॉइंट पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ फंक्शन की? नहीं, तो इसके पहले और इसके बाद में ही निकालूंगा ना। बट अगर मैं f of b माइनस f of a लिखूंगा तो भी मुझे सेम आंसर आएगा। नहीं तो समझ नहीं रहा, सेम आंसर नहीं आएगा ना, सेम आंसर नहीं आएगा। ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर्चुनेटली कभी कभी सेम आ जाएगा, राइट? अगर ये समझ ऐसा हुआ, समझ कि अगर ऐसा हुआ तब सेम नहीं आ जाएगा ना। अब देखिए, अगर तू देखेगा तो इसका आंसर इंफिनिटी भी हो सकता है ना,
ये एरिया, अरे बाबा खुला हो गया ना, ये तो ओपन हाँ स्काई में सर, चला गया ना, दिस इज इन ब्लू स्काई जॉन, राइट? तो इट कैन बी इन्फिनिटी नो, डिसकंटिन्यू होने पर। तो इसको ब्रेक करके इसके इधर कितना आंसर आ रहा है वो चेक करो, इसके इधर कितना आंसर आ रहा है वो चेक करो, और फिर दोनों को ऐड करो। दिस इज मस्ट। इज इट ओके? हाँ सर। सो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे डिपेंड करेगा, तो कौन निकालेगा? वहां ब्रेक करके निकाल ही लो ना एक बार। चलो जैसे कि tan x को मुझे करना है, तो π/2 पे ब्रेक करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, n π/2 पे ब्रेक कर देना उसको, बराबर है। अरे बाबा cot इनवर्स 1/x का एक एग्जांपल लिया था ना, x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है ना। हाँ सर, वो लिया था। हाँ ठीक है, चलो हो गया क्या? फोटो हो गया? हाँ और तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। और किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है जो होमवर्क दिया उससे रिलेटेड? अच्छा ओके, चलो ये सब शुरू में जो 5-10 मिनट एक ही स्टूडेंट को जम के डांट पड़ गई, उसको छोड़ के अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो is there any suggestion from your side that which should be corrected so that no one should suffer, guys? I just don't want कि ये सब चीजें रिपीट होए, तो उसके लिए कोई सजेशन किसी का? अरे वो कुछ तो बोलो कि सर ये करने से इस तरह की चीजें रिपीट नहीं होंगी, मतलब क्या करूं मैं इसके लिए? थोड़ा सा पढ़ा दूं, मतलब 15 मिनट के करीब एक कंटेंट पहले वापस रिपीट करवा दूं, फिर होमवर्क में वो शीट दे दूं। वैसे बचा नहीं है अभी, सिर्फ एनसीआर वाला ही बचा हुआ है। कौन सा? n/r वाला पार्टी बचा हुआ है, तो आज एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके। नथिंग? आई एम वेटिंग, कुछ कोई बोलना चाहता हूँ तो। सर हाँ बोलो। सर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर अगली बार से मतलब जब आप कुछ होमवर्क वगैरह भेजते हो, इज इट पॉसिबल कि स्क्रीनशॉट की जगह वो चीज का पीडीएफ, मतलब 1 या 2 पेज का जो भी पीडीएफ हो वो भेजिए। एक्चुअली क्या होता है, कई बार वो पिक्चर भेजते हो ना, तो उसमें कई बार थोड़ा मतलब क्लिक करने में शायद, या फिर वो अदर इश्यूज की वजह से कई भी जो कई बार लिमिट्स में दिखने में ऊपर और नीचे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बस उतना सही है। ठीक है, एक्सेप्टेड। प्रणव का सजेशन एक्सेप्टेड। और कोई? चलो बढ़िया है, गुड। ये अभी जो बात किया ना लास्ट क्वेश्चन में, उसके बारे में, x²/1 × 2 प्लस नो माइनस x³/2 × 3 प्लस x4/3 × 4। अब तो ठीक है ना, सीरीज बन जाएगी, माइनस अप टू सो ऑन, प्लस -1n x⁴n+1/n × n+1 अप टू इंफिनिटी लेना है इसको, और mod x < 1 है दिया हुआ है। बच्चों अभी तो कोई भी पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा एक्चुअली हम लोग को, है ना? तो इसको मैंने क्या किया, fx लिया एक्चुअली। तो नहीं लग रहा बच्चों कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ 2 गायब, यहाँ 3 गायब, यहाँ 4 गायब, सब यहाँ n+1 गायब, है ना? कुछ अच्छा सा पैटर्न बनने के चांस बन रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, याद करो। मैंने पहले अभी
जस्ट लास्ट वाला बोर्ड पे लिखा डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई इंटीग्रेट, है ना? तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं अभी। तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव में 3 गायब, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू सॉल्व। Guys, do you remember this expansion for mod x less than 1? What is this expansion? किसका expansion है? So Is there anyone remember this expansion? On 1 plus x. ln 1 plus x की 1 minus x. 1 plus x. ln 1 plus x. This is nothing but ln 1 plus x. Okay. मानो किसी को याद नहीं है, जैसा कि इस बैच में देख रहा हूं, राइट? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद तो जीपी बन जाएगी ना। हाँ जीपी का सम तो याद ही है ना, सब लोग को याद है, बराबर है? देखो डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके लिख दिया है वो। अब इंटीग्रेट, व्हाट इज एफ एक्स? इंटीग्रेट, व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट? इंटीग्रल ln 1 plus x dx। बच्चों आ जाएगा क्या आंसर? इंटीग्रेट हो जाएगा ना ये तो? हाँ सर, बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है ना हम लोगों ने। अगर देखो ये सीरीज का समेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट, वी गेट द आंसर। अच्छा इसका उल्टा भी करना पड़ता है कभी कभी, राइट? दिस इज नंबर 1। You try to solve it and just let me know the final answer for this question I'm writing on board. For mod x less than 1, for mod x less than 1, ये क्वेश्चन किधर गया, मिला। Summation of this series, find s. S is equal to 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x4 plus up to so on. Infinite series है बच्चों। Give me the final answer for this fast. Guys, go ahead. Integrate, simplify, differentiate. किसी को होगा तो प्लीज हाथ ऊपर करना।
अरे किसी को नहीं हुआ? अगर में नहीं आ रहा कि क्या करना है नेक्स्ट एक मिनट सर। इंटीग्रेट के बाद तो सिंपलीफाई वाला। सिंपलीफाई में कुछ गड़बड़ हो रही है। इंटीग्रेट सिंप्लीफाई। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था? डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट, यही था ना? तो इसमें हाँ, सर। सिंपलीफाई में दिक्कत आ रही है। हाँ तो अब ये दिक्कत तुम्हारी सीक्वेंशियल सीरीज की दिक्कत है, ये दिक्कत इंटीग्रेशन की नहीं है। सर एक मिनट रुकिए ना प्लीज। ये क्वेश्चन तुम्हारा बुकलेट का क्वेश्चन है, आई टेल यू। जैसे मैं लिखूंगा तुम्हें याद भी आ जाएगा, देखना अभी। बच्चों थोड़ा सुधर जाओ प्लीज, थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करो अपना टाइम टेबल। अगर पिछला ऐसे भूलते जाओगे ना तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे बाय द टाइम। ये स्टेप तो सबने लिख दिया है ना, ये तो देखो सबने लिख दिया। s इज इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रल s इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स। सर 1 मिनट प्लीज। मैं बस सिर्फ यही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये पहली स्टेप जो तुमने लिख दी ना वही कर रहा हूँ अप टू सॉल्व। इनफाइनाइट सीरीज है। अब बकेट एंड कौन वाला है? हाँ बकेट एंड कौन वाला है? पार्थ मुझे समझ में नहीं आया तू क्या कह रहा है। तो ग्राफ बना देना इसका बकेट शेप वाला और अरे कौन हट, वाला। कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन सोच, पार्थ क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? एक बार बता, पॉलिनोमियल नहीं आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, हाँ यही सर। नहीं आएगा? यही आएगा ना इसका हाँ मल्टीप्लिकेशन? एक मिनट सर, थोड़ा चमका है। चाइना को हुआ, हाँ हाँ ठीक है दीपंकर इधर बहुत लोग को हो गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। साइन उल्टा आएगा सर्वेश, साइन उल्टा आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एक मिनट मुझे चेक कर लेते हैं। हाँ नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा। चाइना तेरा आंसर लिख एक बार, क्या आ रहा है? लिखा क्या? हाँ नहीं, तेरा भी उल्टा साइन के साथ में आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, सबको ही उल्टा साइन के साथ में आ रहा है? सर -1 रहेगा ना बाहर? -1/1 माइनस एक्स है ना। हाँ वो आ रहा है। सर मेरा तो नहीं आया वो नेगेटिव साइन। ऊपर का +1 हो नहीं जाएगा, नहीं नीचे x -1 नहीं, होगा। रुक 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 रुक। सर मेरा नहीं आया नेगेटिव साइन। नहीं नहीं, आंसर 1/1 माइनस एक्स ही आएगा। बट डिफरेंशिएट ठीक से करो ना, तो क्या कर रहे हो? 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी तो होगा। नहीं सर, अच्छा ठीक है, एक माइनस आ रहा है। ओके ओके, लेट्स सी देखते हैं अभी। इतना बड़ा ब्लंडर एग्जाम में हुआ तो क्या होगा? प्रोबेबली फ्रॉम माय साइड इट्स हैपनिंग, बट लेट्स सी, चेक करते हैं एक बार, देखते हैं। अरे बाबा तुम लोगों ने ये सीरीज किया है, एक्सेप्ट करो कि मत करो, बुकलेट उठा के देख लो, उसमें ये सब मिल जाएगा तुम लोग को। सर -1/1 माइनस एक्स ही आ रहा है। अच्छा चलो रुको, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं इस पूरी सीरीज को? सर सही है, -1 नहीं आ हाँ रहा सर। मेरा। सुनो ना, ये ln में इस सीरीज को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूं, इज इट ओके? यस सर। बच्चों ये सही है ना? तो बताओ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते होते क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा ना? तो इंटीग्रल s dx क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा ln, अरे ये 1 बन जाएगा। ln 1 माइनस ln 1 x की पावर तो मॉड x लेस देन 1 है ना, तो x की पावर तो इन्फिनिटी 0 बन जाएगी ना? क्या बोलते हो, लिख दूं क्या? Yes, sir. ln 1/1 माइनस x आएगा ना? हाँ। That is nothing but minus ln of 1/1 minus x आएगा ना? माइनस ln of 1 minus x, ये आएगा ना? प्लस ln 1। हाँ हाँ बराबर। ये आएगा ना? अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? s इज इक्वल टू
माइनस अरे हाँ प्लस था 1 upon 1 minus x into -1 that is coming out to 1 upon 1. कितना बड़ा ब्लंडर सब लोगों से Yes, हो रहा है sir. सरप्राइजिंगली। तो -1 बोल दिया। बोलना जो है ना बहुत डेंजर हो जाता है एग्जाम्स में, पता है तुम लोग को। इतना इतना मतलब सब लोगों का और चैलेंज हो रहा है, मतलब कितने कॉन्फिडेंटली गलती कर रहे हैं अपन लोग, समझ रहे हो? सर एक और बार बताओ ना वो अरे माइनस मेरी बात सुन, तुझे पहला ये समझ में आया कि नहीं आया कि 1 minus x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वो minus हो x। गया, मैं माइनस में गड़बड़ कर रही अब हूँ। मेरी बात सुन, ln 1 upon 1 minus x आएगा बराबर ये स्टेप, ठीक है? हाँ सर। इसको मैं माइनस ln 1 minus x लिख सकता हूँ, ln 1 minus ln 1 minus x, अरे हाँ है ना? अब ठीक है differentiate ठीक है कर, ठीक है। ठीक है? मुझे ऐसी गलतियां ऐसा नहीं सब लोग से होती है, लेकिन बहुत लोगों से होती हैं ऐसी गलतियां। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे अभी कि ये मिस्टेक कहीं होगी, मैं समझ रहा था कहीं इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी, फंसोगे तुम लोग। ठीक है, चलो बच्चों एक चीज और ध्यान दो, ये सब मैंने पहले कराया क्लास में और तुम लोगों में से कुछ लोगों का आंसर आया भी था पहले, राइट? तो फिर गाइस बताओ याद है कि नहीं है, वो चेक करना है। समेशन n is equal to 0 to infinity, n is equal to 0 to infinity 1 upon 3n plus 1 minus 1 upon 3n plus 2। ये मत समझो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज करा रहा हूँ, राइट? मैं सीक्वेंस सीरीज ने मैं इंटीग्रेशन में ही अभी हूँ। बताओ बच्चों ये सब किया है पहले हम लोगों ने? किसी को याद आ रहा है तो जल्दी बताओ, किसी को याद बिल्कुल नहीं आ रहा तो मैं सिखा देता हूँ ये सम, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूँ फिर। तो सिखा दो। अच्छा ये तो टेलीस्कोपिक तो नहीं है, ये तो पक्का है। तो समेशन को इंटीग्रल बना के r by n हाँ 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 यू आर राइट, समेशन को इंटीग्रल नहीं, r by n वाला नहीं है ये r by n वाला 1 by n वाला ना। नहीं, 1 by n r by n आएगा ही नहीं इसमें। मतलब r देखो वो जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन की क्वालिटी थी, उस क्वेश्चन में r by n, फंक्शन ऑफ r by n और 1 by n दोनों साथ में रहते थे n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए, राइट? वो था ऐसा यहाँ सर पे इधर tan इनवर्स कहते थे। पार्डन tan इनवर्स तुम क्या पूछ रही हो? मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। इसे सॉल्व करने के लिए। हाँ 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 लेते थे, हाँ यू आर राइट। tan इनवर्स बीच में कहीं आता है, इसके सॉल्यूशन में कहीं आता है, यू आर राइट। सब लोग सोच रहे हैं यार tan इनवर्स कहाँ से आ जाएगा यार इससे। बच्चों ध्यान दो, can I write this part which I am putting a circle, can I write this part as integral x raised to power 3n dx from 0 to 1? बच्चों टेल मी, लिख सकते हैं ना? अरे इंटीग्रेट करो ना, x to the power 3n plus 1 upon 3n हाँ plus 1 सर। तो 0 to यही तो आ जाएगा। एंड बच्चों व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ऐसे अलग अलग क्यों लिखते हैं, इसी में लिखते हैं ना, x to the इसके power, बाद 3n plus 2। यही है ना बच्चों? इसका मतलब यही तो है। और लिमिट हाँ। क्या है? n tending to infinity. Just try and remember the last lecture. बच्चों can I write this? Can I write this? Integral 0 to 1 limit n approaching towards infinity. Right? कौन कॉमन बच्चों इसमें? x to the power और 3n, 3n x to the power 3n कॉमन ना? What is left outside? 1 minus x। 1 minus x, right? Summation n किधर से किधर है? 0 to infinity है ना? समेशन कैसे अंदर ले आए? अरे समेशन और इंटीग्रल तो स्विच कर सकते हैं ना? हाँ समेशन और इंटीग्रल तो स्विच होते हैं, दोनों सेम ही तो है। पहले सम करो और इंटीग्रल निकालो, चाहे पहले इंटीग्रल करो और सम निकालो, इंडिपेंडेंट हो गए ना? हाँ सर बराबर। बराबर है। अच्छा ये बताओ अंदर ये 1 minus x तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा भाई, चेंज कौन हो रहा है? n ही तो चेंज हो रहा है, तो ये जीपी नजर नहीं आ रही? जीपी
हाँ फर्स्ट टर्म क्या है इसका जीपी का, n इक्वल टू 0 One. रखने से बनेगा ना 1, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है x की पावर x क्यूब x क्यूब, तो समेशन क्या आ जाएगा 0 टू 1 लिमिट 1 minus x लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यों लिख रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो लिख रहे हैं वो समेशन में आ तो चुका है, यहाँ समेशन में लिख दिया ना इसको, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की कहाँ जरूरत है, बराबर ना बच्चों। 1 minus x समेशन में ही था रहेगा। एक्चुअली, ये समेशन में ही था, लिमिट लिखा ही गलत है, n 0 टू इंफिनिटी, n 0 यहाँ 0 टू 1। अब बच्चों यहाँ ये क्या बनेगा बताओ, इसका समेशन क्या बनेगा, a 1 अपॉन 1 minus माइनस x। r, a का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब बराबर हाँ सर। इंटू 1 माइनस x dx। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, हाँ सर। 1 upon quadratic 0 to 1 dx upon 1 plus x square। बच्चों what makes you different from others, disciplined hard work, hard work doesn't make you different from the others actually, disciplined hard work। When I say that this chapter has been done, this topic is being done in limits, then discipline says that I have to devote minimum half an hour before I go to sleep and before I attend the lecture, right? That I have to go for half an hour at least in limits theory। First तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है कहाँ लिखा हुआ है जो क्वेश्चंस दिए हैं वो, राइट, आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ के फिर ट्राई करके आना है, ये डिसिप्लिन हार्ड वर्क हो गया। दैट मेक्स यू डिफरेंट इन द कंट्री, कि मैं कंट्री में सब बच्चों से आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। इन डिसिप्लिन हार्ड वर्क वो आपको किधर भी ले जा सकता है, जैसे अभी पता लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाएगा, अभी कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं मेरा 50 रैंक आ रहा था अभी 800 आ रहा है, तो 800 बच्चे थोड़ी हैं, 2000 रैंक भी तो हो सकता है, और फिर पता लगा ऊपर आ ही नहीं पा रहे, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं इसलिए क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने कराया है कहीं बीच में, शायद किसी और बैच को कराया हो, तुम लोग का ध्यान नहीं हो मुझे। हाँ लेकिन वो पुराना वाले सब ठीक, कॉमन डायलॉग थे वो सही थे, वो डाट ठीक थी, लिमिट्स में पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है ना, राइट। कहीं ये समझ में आ गया तो अच्छा क्वेश्चन दे सकता हूँ एक, मतलब हाँ सर 50-50 चांसेस ऐसे हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आई एम नॉट श्योर, राइट। तो देखते हैं किसका बनता है, लेट मी सर्च। ऐशा ना एक फोटो डाल दो उसका, किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये नहीं समझ में आया तो अगला वाला तो समझ में आएगा ही नहीं, मतलब वहां पे तो हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब उस सम में जो यहाँ किया है वो तो करना ही करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो आई हैव टू सर्च द सम, और तब तक एक फोटो डाल दो जरा इसकी फटाफट से। Done. Just give me 1 minute, please. Yeah, I've got this one. -1 raised to power k summation -1 raised to power k summation k is equal to 0 to n -1 raised to power k और nck divided by k plus m plus 1, right, is equal to summation, ये प्रूव दैट बच्चों, summation k is equal to 0 to m, k is equal to 0 to m, mck upon k plus n plus 1। बच्चों ये तुम्हारी बुकलेट का ही समय है, -1 raised to power k यहाँ भी है,
ये भी तुम्हारी बुकलेट का सम है, बाइनोमियल थ्योरम की बुकलेट का सम है, अगर किया हो तो, याद हो तो। गाइस ट्राई। ओ अच्छा, तुम लोगों ने वहां कैसे किया था, ये मुझे बताओ। बाइनोमियल थ्योरम में कैसे किया होगा इस वक्त काम तुम लोगों ने, या छोड़ दिया था वहां पे, या तुम ढूंढ रहे हो कि कहाँ था ये सम? मुझे लगता है ये बाइनोमियल थ्योरम का सम है, क्योंकि ये जे एडवांस सब्जेक्टिव का सम है, अच्छे खासे वेटेज वाला सम है, राइट। और इसको हम लोग ने जब सॉल्व किया था तो मुझे याद आ रहा है अच्छे से कि उस टाइम में लाइक कितना, हार्डली कुछ 2 से 3 मिनट मैक्सिमम मैं पकड़ में आ गया था कि किस प्रोफाइल पे क्वेश्चन पूछा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना कम टाइम में पकड़ में आना बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली, और वो भी चैलेंजिंग सा क्वेश्चन होता है तब।
ऐसा तो मैंने देखा नहीं इस क्लास में कि सारे लोग का सरेंडर हो जाए। बताओ क्या? नहीं सर। बाइनोमियल थ्योरम का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है बच्चों इधर, और फिर किंग यूज करते ही आंसर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में किंग यूज करोगे ना तो फट से आंसर आ जाता है। Actually, if you wish, I can leave this question for homework, because two more questions I had given last time and we have not yet discussed that. Do you remember that? In last question, what was the inspiration of 1/3 plus 1/3n plus 1 writing in integral? बच्चों एक सीरीज बन जाती है, वही है ना, वो इंस्पिरेशन था ना कि इंटीग्रेट करेंगे तो समेशन इंटरचेंज करने से एक सीरीज बन जाती है। देखो ना यहाँ भी कुछ इस तरह का। Oh, Kshitij and Shreyas have done it. I believe ऐसा कुछ बन रहा है ये, k is equal to 0 to n minus 1 raised to power k n c k integral 0 to 1 x to the power k plus m dx। अब मुझे स्मार्टली समेशन और इंटीग्रल को इंटरचेंज करना है और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है। k वेरी कर रहा है, ध्यान रखना, x टू द पावर m वेरी नहीं कर रहा है, इसको बाहर रख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 x टू द पावर m वेरी नहीं कर रहा है, राइट। वैसे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इंटीग्रल के अंदर लिख रहे हैं। और ये आ रहा है -1। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे
एक अच्छा रीजन बताओ कि ऐसा मैंने क्यों किया। -1 राइट, एंड सी के x⁻k। बाइनोमियल बन गया। एक मिनट, 0 to 1 x⁻m समेशन। बच्चों, और k किधर से किधर जा रहा है? 0 to n। क्या बन रहा है बच्चों ये? 1 minus x raised to power 1 - x⁻ क्या? n n. x⁻m 1 - x⁻ कितना? n बराबर, बराबर है ना बच्चों? हाँ सर। अब इसमें लगा दो किंग। किंग लगाओ बच्चों इसमें, बताओ क्या बन जाएगा। तुम्हें पता है ना, इधर NCK था, उधर MCK चाहिए, तो इसमें किंग लगाओ। ये क्या बन जाएगा? 1 - x⁻m से yes or no हाँ इक्वल हो गया, हेंस प्रूव। into x⁻m। बच्चों समझ में आया क्या? हाँ सर। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखो बच्चों, इसका एक्सपेंशन लिख के समेशन तो के वही फॉर्म में। ऊपर जो किया उसका उल्टा ही करना है। बस उल्टा ही कर रहा है और कुछ नहीं करना है। वही तो हो गया, वही हो गया ना, ये फ्लिप ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है बच्चों? 10 मार्क्स के वेटेज क्वेश्चन है। अगर इसको तुम बाइनोमियल थ्योरम से करोगे तब भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन में एक फॉर्म लिखनी पड़ती है और फिर उसको एक्सपेंशन देना होता है, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। वो उतना सोचना पॉसिबल नहीं है। ये सोचना आसान है मेरे हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट बड़ी जल्दी से जा सकता है। करूं क्या इसके बाद? नहीं सर। थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत थी। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस में कोई मुझे बताएगा कि लास्ट 2 क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों को होता। पहला क्वेश्चन कितने लोग को हो गया था? ये वाला क्वेश्चन, इफ आई रिमेंबर, 0 to box x dx, ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है ना बच्चों? था ना ये लास्ट टाइम होमवर्क में क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, इसका आंसर भी बहुत लोग को आया था। क्या हाँ आंसर था? क्या आंसर था? बॉक्स एक्स। यही था ना बच्चों? कितने लोग को इसका आंसर आया लास्ट टाइम? ये आंसर मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा था एक्चुअली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस आंसर? किसी को नहीं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? चैट बॉक्स पे बहुत सारे आंसर्स आए थे इस तरह के। सर वो एक अलग क्वेश्चन था ना, वो आपने फोटो भेजा था। हाँ हाँ, उसका फोटो भेजा था मैंने, और उसमें ये क्वेश्चन था ना, 0 to box x dx। और दूसरा क्वेश्चन ये था 0 to x box x dx। ये 2 क्वेश्चन अलग से दिए थे मैंने। फोटो भेजा था वो अलग क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो अलग क्वेश्चन है। 0 to आपने x होमवर्क में दिया था अलग से लिख के। हाँ, बोर्ड पे अलग से लिख के दिए थे ये दोनों क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन किया था सब बच्चों ने। बच्चों ये दोनों आंसर, करना बाकी था। हाँ दोनों करना बाकी था। दोनों करना बाकी था, लेकिन कुछ आंसर्स आए थे ऐसा मुझे याद आ रहा है। वो और दूसरे क्वेश्चन का था, वो शीट में से था, फोटो में से था वो। हाँ, तो मुझे बताओ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग